welcome back. Now in a massive development regarding the Kanpur clashes, the main accused and local Muslim leader Hayat Zafar Hashmi has been arrested by the Lucknow Special Task Force, and he has been accused of inciting people to stone pelting and riots in the area, in which several people and including police personnel were injured. Hashmi has been taken into custody and taken in for questioning. He is among the 40 accused named in the FIR in this case. Let me go across to my colleague Amir, who is joining me over the broadcast. Amir, we know that the main accused has been arrested, but if you can first take us through as far as the investigation is concerned, any updates over that? Well, the Kanpur Police Commissioner briefed the media last evening, and although the arrested persons figure stood at 18 then, six more accused were arrested yesterday by the Kanpur police, and that took the total number of arrests to around 24. Now there are over 50 named accused in the two FIRs that have been filed by the Kanpur police, and more arrests are likely to take place today. Apart from that, third FIR, which was lodged on the complaint of the locals whose shops were vandalized, there are over 1,000 unidentified accused who have been registered in the FIR. The police's job will be to identify all such accused who indulge in vandalism and rioting, and therefore, the potential for many more arrests is also there. Apart from that, the police is sifting through the cell phone records of the main conspirators, Zafar Hayat Hashmi, and is also looking at his bank records to find out if at all he had any direct connections with the PFI, because PFI's name has come up in almost all such instances of communal disturbances that have taken place over the last several years in Uttar Pradesh. In the last anti-CAA and NRC riots that took place around December 2019, PFI had a lead role in inflaming communal passions in Kanpur and elsewhere as well. So therefore, the police's line of investigation will also establish whether any Popular Front of India contacts emerged during the investigation, and therefore the police is seeking a 14-day remand of the main conspirator, Zafar Hayat Hashmi, as well as his close associates who have been arrested by the police. All right. Thank you, Amir, for all those updates on this story. Now, let's also listen into what exactly the police has to say over this matter. पहले भी कानपुर में सीए विवाद में 5 पीएफआई के कार्यकर्ता भी गिरफ्तार हुए थे जी। माना गया था कि पीएफआई ने मैनेज करके बवाल कराया, तो इस बवाल को क्या उस धारणा से जोड़ करके क्या पीएफआई का कनेक्शन कुछ निकलेगा? हमारे पास उन 5 की सूचना है और उनको शीघ्र ही उनको आइडेंटिफाई करके उनकी भी अगर उनका रोल है तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे इशू को हम लोग देख रहे हैं, और इसमें मैंने जैसा आपको कहा, किसी को भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो बिलोंग करता हो, चाहे पीएफआई से हो चाहे कहीं और से। और ये भी चीज हम लोग देखेंगे कि इनकी फंडिंग कहीं किसी और जगह से तो नहीं हो रही है। तो ये विवेचना के विषय हैं, ये विवेचना का बिंदु है, पर इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये साजिश थी। जिस तरीके का घटनाक्रम है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोगों ने साजिश की थी शहर का माहौल खराब करने की, और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से इसको हम लोग रोक पाए, और हम लोग और भी इनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करेंगे कि भविष्य में इस तरीके की घटना घटित न हो। देखिए, ये विवेचना का विषय है, और जिसके मैंने आपसे पहले भी कहा, जिस भी किसी व्यक्ति का जिस भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। So you just now heard the officials. Now also let's listen into what the eyewitness has to say. बेकनगंज इंस्पेक्टर, ये थाना बेकनगंज लगता है, बेकनगंज इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज, ये लोग सब यहाँ खड़े हुए थे। तो हम लोगों ने उनसे आग्रह करा कि आप सामने की तरफ बंदूक अगर तान कर खड़े हो जाएंगे तो वो भीड़ इधर नहीं आएगी, लेकिन वो भी 2-3 मिनट रुकते हैं और 2-3 मिनट रुकने के बाद वापस भागते हैं। जैसे कि उन्होंने भी प्लान करके रखा हुआ था कि आज इस हाथे को समाप्त करवा दिया जाएगा। प्लानिंग समझ में आती है, षड्यंत्र किसी प्लानिंग समझ में आती है भैया। अगर कोई पूजा पाठ करने मंदिर जाता है, इबादत करने मस्जिद जाता है, तो वो ठेले में पत्थर, बम, पेट्रोल बम इकट्ठा करके नहीं जाता है।
So Hayat Zafar, who has now been arrested as the president of Maulana Muhammad Johar Ali Fans Association and announced the closure of the parade market on June 3, he published posters that were put up all over the area. He called for a shutdown to the BJP leader Nupur Sharma's remarks. Now, the statement of the BJP leader caused huge outrage among the Muslim community. Due to this outrage, the Johar Fans Association had announced a market band on June 3. Let's listen in to what he had to say. मेरा दिल दोस्तों, नामूस रिसालत पर आगामी 5 जून बरोज़ तवार को कल देर रात इंतजामिया के दरमियान देर तक चली गुफ्तगू में ये तय पाया है कि हम आशिकान मुस्तफ़ा इंशाअल्लाह रहमान 5 जून बरोज़ तवार सुबह 11:30 बजे कानपुर के रजबी रोड हजरत सादिक शाह बाबा हजरत सादिक शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के नज़दीक जमा होंगे चौराहे पर और वहां से इंशाअल्लाह रहमान जेल की जानिब रवाना होंगे। कारवां गुलामान मुस्तफ़ा जेल की जानिब रवा होगा। हम तमाम गयूर मुसलमानों से, शहर कानपुर की आवाम से बदखुलूस अल्तमास करते हैं कि बराए करम आप कसीर तादाद में अपने आका से सच्ची पक्की मोहब्बत होने का नजराना पेश करने के लिए 5 जून को अपने तमाम जरूरी कामों को तर्क करके जेल की दीवारों को, जेल की पोजीशन को, जेल के हिस्से को गुलामान मुस्तफ़ा से भर दीजिए। हैयात ज़फर हाशमी को लेके फेसबुक व्हाट्सएप पे उन्होंने एक आह्वान किया था 3 तारीख वाला कि 3 तारीख को वो बंदी करेंगे और फेसबुक पे भी उन्होंने डाला था क्योंकि नबी पाक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, शान के खिलाफ गुस्ताखी हुई थी। लेकिन इस प्रोग्राम से पहले ही कमिश्नर साहब ने उनको फ़ोन करके बुलाया और कहा कि पीएम मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी कानपुर में उस दिन हैं, तो बराए मेहरबानी आप ये प्रोग्राम स्थगित कर दीजिए। हैयात ज़फर हाशमी ने कमिश्नर साहब के साथ लिखित में भी दे दिया और उनसे कह भी दिया कि मैं ये प्रोग्राम नहीं करूंगा, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो ये बिल्कुल गलत है, जिस तरह से उनको मास्टर में बताया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कमिश्नर साहब से भी स्टेटमेंट दे चुके हैं और कल के बयान में भी कोई खबर नहीं मिल रही है उनकी कि वो कहाँ है। उनके सारे फोन पर वो कहाँ गए थे, जब नहीं रात में 9 बजे वो घर से निकले, उसके बाद उनको कोई पता नहीं है। Meanwhile, politics has emerged over the same, with the BJP assuring that anyone who tries to incite violence in Yogi's rule will not be spared. हम चिन्हित कर रहे हैं और जो भी गड़बड़ी फैलाए हैं, जिन्होंने कानून तोड़ा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कानपुर वाले मामले में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होने वाला है, जो भी है उसको कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी लोगों ने कानून हाथ में लिया है, मुझे लगता है कि अगर उनकी जांच की जाएगी और आगे एजेंसियां जांच करेंगी, वो सदस्य ही समाजवादी पार्टी के निकलेंगे, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं। उनकी सदस्यता देखी जाएगी, उनके तमाम फुटेज निकाले जाएंगे, तो उसमें यही लोग बैठे दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी के ही लोग उन्हें महिमा मंडित भी करते हैं और उन्हीं के पाले हुए ही गुंडे हैं, उन्हीं के पाले हुए लोग हैं जो इस तरह का माहौल लगातार उत्तर प्रदेश में जब चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे और कोई अन्य जगह हो, चाहे सीए एनआरसी हो, उसमें यही सब दिखाई देते हैं। कानपुर में भी वही दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की कोशिश है कि साहब मोदी जी के शासनकाल में, योगी जी के शासनकाल में जो दंगे नहीं हो रहे हैं, फसाद नहीं हो रहे हैं, सौहार्द का माहौल है, उस रिकॉर्ड को कैसे तोड़ो। उस रिकॉर्ड को तोड़ने की जो सनक और साजिश है वो शुद्ध रूप से दिखाई पड़ती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो दबंगों की सुपारी पर दंगों की साजिश है, ये शुद्ध रूप से उन लोगों की कारस्तानी है जो देश के सौहार्द को, देश की एकता को, देश के भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।